राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि हम कोरोना लहर से गुजर रहे हैं। साल 2014 से सरकार का ध्यान गरीबों और वंचित तबकों पर है। सरकार मध्यम वर्गों को आवश्यक परिवेश उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में बिजली, घर इत्यादि पर जोर दिया। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition and climate action, and relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years.
Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff, and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august house. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वकालिक वित्त मंत्री के रूप में अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां आम बजट पेश किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को लेकर अपने विचार साझा किए और बजट को जनहितैषी व विकासोन्मुखी करार देते हुए वित्त मंत्री को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम जनता के लिए कई नए अवसरों का निर्माण करेगा। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल,
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट 2022 पर कहा कि बजट में इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप को महत्व देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और निर्यात बढ़ाने को सोचकर नीतियां बनाई गई हैं। मुझे खुशी है कि नए राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से रोजगार और नए भारत का निर्माण होगा। 21वीं सेंचुरी में भारत कैसा होगा और 75 साल पूरे करने के बाद भारत किस दिशा से जाएगा, इसका एक प्रकार से दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है। टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, इनको महत्व देते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और इंपोर्ट कम होते हुए भी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट है, गांव गरीब मजदूर किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियाँ बनाई गई है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी जो निर्माण होंगे। भारतमाला और सागरमाला 2 प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का अवसर मिला और अब पर्वतमाला, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें रोप वे, केबल कार, पेनिकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश के 16 प्रोजेक्ट्स हमारे विचाराधीन हैं। इसी साल हम 8 प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और बड़े प्रमाण पर पहाड़ी क्षेत्र में है। इसके कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी और ये ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इम्पॉर्टेंट पिलर हैं। इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज़ होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है। और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आज पेश हुए भारत के बजट की चर्चा जनता से की और बजट के द्वारा देश की सड़क व्यवस्था सुदृढ़ करने, हर घर नल योजना और युवाओं को नौकरी देने की पहल के बारे में बताया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया और कहा कि देश की सर्वाधिक आबादी यूपी में है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को बजट की योजनाओं से सबसे अधिक फायदा होगा। आज भारत सरकार का वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत हुआ है। यह बजट भारत के 135 करोड़ लोगों के प्रगति, खुशहाली और उज्जवल भविष्य की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट में 25,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, जलपोर्ट, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए साथ ही देश के अंदर 80 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 60 लाख नौजवानों के लिए नई नौकरी, हर गांव में हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य और देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 5G की सुविधा उपलब्ध कराने की एक बेहतरीन पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। केंद्रीय यूनियन बजट को प्रस्तुत करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उत्तर प्रदेश को खास तौर पर इसका सर्वाधिक लाभ होना है, क्योंकि देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे युवा उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा मकान भी यूपी को मिलेंगे और सबसे अधिक युवाओं को यूपी के ही नौकरी भी मिलनी है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन भी करते हैं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यह चुनाव
हम सबको बहुत सारी चीजें कह दे रहा है। चुनाव के पहले लोग अलग बात करते थे, चुनाव के प्रत्याशी घोषित होने के बाद लोगों ने दूसरी बात करनी प्रारंभ कर दी, और कुछ लोगों ने तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने प्रत्याशी भी बदल करके यहां पर पूरे समुदाय को एक बार फिर अपमानित करने का काम किया था। अभी मुजफ्फरनगर के दंगों के घाव शांत नहीं हुए थे कि प्रत्याशी बदल करके उन्होंने साबित कर दिया कि जब भी उनको अवसर मिलेगा तो किसी दंगाई को और किसी पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने में उनको कोई शर्म नहीं आने वाली, कोई निर्लज्जता नहीं होने वाली है। 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, और दंगाइयों का मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा ना। जब यहां के नौजवान उसका विरोध करते थे तो इन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे, झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते थे। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, किसान परेशान था, नौजवान को नौकरी नहीं थी, गरीबों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। 2017 में सरकार बनी तो हमारी सरकार ने पहला फैसला क्या किया? 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का कार्यक्रम किया था, और मेरठ जनपद में भी 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 1 लाख किसानों का। आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई तो लोगों ने निवेश किया। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा, और अब तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भी ओलंपिक में मेडल लाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी मेरठ में दे दिया है। ये विकास है। गरीब को राशन भी है, गरीब को विकास भी है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ माफिया की छाती पर बुलडोजर भी है, और ये वही कर सकता है जिसकी सोच ईमानदार हो और काम दमदार हो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज पेश हुए वित्त बजट पर प्रेस वार्ता कर अपने विचार रखे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बजट में मोदी सरकार ने एमएसपी का पैसा कम किया है और फायदा उठाने वाले किसानों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी में 4% की कटौती की है, जबकि इससे 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिलता है। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र द्वारा तय दिल्ली के कम बजट शेयर को लेकर विरोध जताया और इसे दिल्ली के साथ नाइंसाफी बताया। सबसे पहली बात तो इस बजट की यह है कि ये किसानों के खिलाफ बजट है, किसान विरोधी बजट है। हम सब जानते हैं कि देश में किसान एग्रीकल्चर सेक्टर 60% एम्प्लॉयमेंट आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। पूरे 1 साल से किसान, देश के किसान एमएसपी की मांग को लेके, एमएसपी के खिलाफ बने कानूनों को लेके सड़क पे रहे, पूरा देश में आंदोलन चला। लेकिन इस बजट में सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ी चपत लगाई है, किसानों को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और एमएसपी का जो पैसा है, मतलब मोदी जी की सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी का पैसा कम कर दिया, उनके जो एमएसपी का फायदा किसान उठाते हैं उनका टारगेट कम कर दिया, उनकी संख्या कम कर दी। मैं आपके सामने रखता हूं, निर्मला सीतारमण जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज कहा कि इस साल धान और गेहूं की खरीद के लिए लक्ष्य 1286 मीट्रिक टन से घटाकर 1208 मीट्रिक टन कर दिया गया है। 2,48,00,000 रुपए से घटा के 2,47,00,000 रुपए कर दिया एमएसपी का जो पैसा है। मतलब एमएसपी के लिए जो पैसा आरक्षित कर दिया गया था वो भी कम कर दिया। 4.5% एमएसपी का बजट कम कर दिया। मतलब एमएसपी किसानों को जो दी जाती है उसके पैसे में 4.5% की
कटौती करी है केंद्र सरकार ने, जो कि किसानों के साथ धोखा है। और खुद सरकार मान रही है कि इससे पिछले साल 1,97,00,000 किसानों को फायदा मिला था, अब 1,68,00,000 किसानों को फायदा मिलेगा। मतलब एमएसपी का फायदा उठाने वाले किसानों की संख्या भी सरकार कम कर रही है, एमएसपी का पैसा भी कम कर रही है। एमएसपी के लिए एमएसपी देकर जो खरीद की जाती है गेहूं की और धान की, उसका टारगेट भी केंद्र सरकार ने कम कर दिया। तो इससे बड़ा फार्मर विरोधी बजट क्या होगा? एक ऐसे समय में जब किसान चारों तरफ से महंगाई की मार झेल रहा है, वैसे में एमएसपी का पैसा कम करना, एमएसपी का बजट नीचे लाना किसानों को एक तरह से चपत लगाने जैसा है। इन्होंने 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें तो पूरी तरह फेल हो गई है। आज जब 2022 का बजट पेश किया तो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर 4.25% जो टोटल बजट का एलोकेशन है, पिछले साल 4.25% था, इस बार उसको घटा के 3.84% कर दिया है। 60% जॉब इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं और उसका बजट शेयर 4.25% से घटा के 3.84% करना कौन से विजन का काम है? उससे कैसे रोजगार बढ़ेंगे? उससे कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी जब आप एग्रीकल्चर का बजट कम करते हैं? पूरा देश पैंडेमिक से जूझ रहा है 2 साल से। पैंडेमिक ने हमको सिखाया कि, सारी दुनिया को सिखाया है पैंडेमिक ने कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश में बढ़ावा देना चाहिए। पूरे के पूरे पैंडेमिक के अनुभव को और चारों तरफ से ये जो समझ बनी कि हेल्थ सेक्टर पे और पैसा खर्च करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार ने उसको कोई तरजीह नहीं दी। हेल्थ सेक्टर पे उन्होंने कोई पैसा नहीं बढ़ाया, हेल्थ सेक्टर का बजट जू का तू रखा उन्होंने। एजुकेशन, इस कोविड के समय में एजुकेशन को बहुत लॉस हुआ है। पूरे बजट में नई एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं की। नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें ये बड़ा शोर मचाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया नई एजुकेशन पॉलिसी लाके। नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार को जीडीपी का 6% तक एजुकेशन बजट ले जाना पड़ेगा, तब ये पॉलिसी लागू हो सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कम कर रही है एजुकेशन का पैसा। पूरे देश के लिए अलग से जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उसमें हिस्सेदारी के लिए पूरे देश के राज्यों के लिए 8,16,000 करोड़ रुपए रखा है। लेकिन इस 8,16,000 करोड़ रुपए सारे राज्यों के लिए और दिल्ली के लिए केवल 325 करोड़ रुपए। ये दिल्ली के साथ बहुत गलत करती आई है केंद्र सरकार। कांग्रेस की सरकार भी यही करती आई और बीजेपी की सरकार भी यही कर रही है पिछले 21 साल से। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस पर तटरक्षकों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट किया पेश, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। राहुल ने आम बजट को जीरो सम बजट करार दिया, बोले सरकार ने युवाओं किसानों को कोई राहत नहीं दी। वित्त मंत्री ने कहा पूर्वोत्तर के लिए शुरू होगी पीएम विकास पहल योजना। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के मामले कम होने पर 11 जिलों में पाबंदियों में ढील दी। कांग्रेस के घर घर चलो अभियान का हुआ आगाज, देवास से कमलनाथ करेंगे शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। स्कूल खुल गए लेकिन खाली दिखी क्लासरूम, ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन जुड़े बच्चे। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.67 लाख से अधिक नए मामले, 1,192 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ का बयान, समाजवादी पार्टी नीतीश सरकार ने उत्तर प्रदेश को हिंसा में धकेला। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
करेंगे हम